ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان نے کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزا خدمات کو غیر معینہ مدت کے لیے کر دیا معطل۔ ادھر کینیڈا نے بھی ہندوستانی شہریوں کے لیے ویزا خدمات کو کر دیا معطل۔ حیدرآباد دنیا کے ٹیکوں کا دارالحکومت بن گیا۔ حیدرآباد میں ایک تقریب سے وزیر KTR کا خطاب۔ ملک بھر کے سیل فون صارفین کو ایمرجنسی الرٹ میسج، KTR بھی میسج سے چونک گئے۔ موٹر سائیکل کے ٹائر میں پھنس گئی اوڑھنی، خاتون گر کر ہلاک۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں افسوسناک واقعہ۔ حیدرآباد میں گنیش مورتی کے لڈو کی چوری، ویڈیو وائرل۔ تلنگانہ میں انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل، چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج کا بیان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ نئی دہلی نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کو لے کر کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزا خدمات کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کی طرف سے خالصتانی لیڈر ہردیپ سنگھ کے قتل میں ہندوستان کے ملوث ہونے کے الزام نے کشیدگی کو بڑھا دیا اور سفارتی تنازع کو جنم دیا۔ اس ہفتے سینئر سفارتکاروں کی بے دخلی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ویزا سروس کی معطلی کا کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ BLS انٹرنیشنل، جو کہ کینیڈا میں ویزا اپلیکیشن سینٹر چلاتا ہے، نے اس سلسلے میں اپنی کینیڈین ویب سائٹ پر ایک پیغام پوسٹ کیا۔ ہندوستانی مشن کی طرف سے اہم نوٹس آپریشنل وجوہات کی بنا پر 21 ستمبر 2023 جمعرات سے ہندوستانی ویزا خدمات کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ ایک اور بھارتی اہلکار نے معطلی کی تصدیق کی، لیکن مزید تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان نے کووڈ-19 وبائی امراض کے بعد ویزا معطل کیا ہے۔ اسی طرح کینیڈا نے بھی ہندوستانی شہریوں کے لیے ویزا خدمات کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا۔ کینیڈا میں ایک اور خالصتانی لیڈر کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خالصتانی دہشت گرد ارشدیپ سنگھ عرف ارشا ڈالا کا حامی سکھدول سنگھ کینیڈا میں مارا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چہارشنبے کی رات گینگ وار تصادم میں اس کی موت ہو گئی۔ گینگسٹر سکھدول سنگھ کا تعلق پنجاب کے ضلع موگا سے ہے۔ 2017 میں وہ جعلی دستاویزات پر بھارت سے کینیڈا فرار ہو گیا۔ تب سے وہ کینیڈا میں مقیم تھا اور خالصتان کے حامی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ دہشت گرد ارشدیپ ڈالا کا قریبی ساتھی تھا۔ NIA کا ماننا ہے کہ اس کے انتہائی مطلوب مجرموں کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ ان 43 غنڈوں میں سے ایک ہے جس کے کینیڈا میں خالصتان دہشت گرد تنظیم سے روابط ہے۔ واضح ہے کہ خالصتان دہشت گرد ہردیپ سنگھ اس سال جون میں مارا گیا تھا۔ حملہ آوروں نے اس کو بے دردی سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تاہم کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس کے قتل کے پیچھے بھارت کا ہاتھ بتایا۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی جنگ چھڑ گئی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 2 دنوں تک تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ جمعرات سے جمعہ کی صبح تک عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنہ سرسلہ اور کاماریڈی اضلاع میں یہاں اور وہاں موسلادھار بارش ہوگی اور کئی مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ جمعہ سے ہفتے کی صبح تک کئی اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف جمعرات کو آصف آباد میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ سرپور ٹی میں سب سے زیادہ 11.3 سینٹی میٹر بارش ہوئی۔ عادل آباد، نرمل، جگتیال، کریم نگر، ملگو، ورنگل، ہنمکنڈا اور کریم نگر اضلاع میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ BRS کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KTR نے حیدرآباد کے نواحی علاقے جینوم ویلی میں BSV کمپنی کے نئے یونٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ملک میں سب سے زیادہ انسانی وسائل والی ریاست ہے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ حکومت بھارت سیرم انسٹی ٹیوٹ کو ہر قسم کا تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر KTR نے کہا کہ جینوم ویلی کی مزید 250 ایکڑ تک توسیع کی جائے گی۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت صنعتوں کی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں سب سے زیادہ تیزی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیکس آمدنی کے لحاظ سے تلنگانہ پہلے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا جہاں ملک کی اوسط فیکس آمدنی 1,39,000 ہے، وہیں تلنگانہ کی فیکس آمدنی 3,17,000 روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ حیدرآباد دنیا کا ٹیکوں کا دارالحکومت بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں 33% ویکسین حیدرآباد کی جینوم ویلی میں تیار کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں ہر سال 900 کروڑ ویکسین تیار کی جاتی ہے۔
कहा आइंदा साल से यहाँ 1400 करोड़ वैक्सीन तैयार की जाएंगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि दुनिया के टीकों की पैदावार का 50% हमारा होगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से नौजवान पेशावर अफराद की मौजूदगी, इन्हें देखकर यहाँ आने वाली कंपनियाँ और हुकूमत की जानिब से इनका ताउन शामिल है। I'll speak in Telugu first and then I'll probably switch to a language that you both understand. చాలా మందికి ఒకటి అర్థం కాదు ఏంటంటే ఈ స్థాయికి ఈ రోజుకి రావాలి అంటే ఒక టెంకాయ కొట్టి భూమి పూజ చేసే పరిస్థితి రావాలంటే వీళ్ళని ఒప్పించడానికి చాలా తంటాలు పడాల్సి ఉంటుంది. మేము గవర్నమెంట్లో చాలామందికి అర్థం కాదు అది. మేమనుకుంటారంటే రోజు వచ్చేసి ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టడం, రిబ్బన్ కట్ చేయడం అంటే చాలా ఈజీ కార్యక్రమం, మంత్రులకి ఇంకేం పని లేనట్టుంది, రోజు వచ్చి అక్కడో ఇక్కడో కనబడతారు అనుకుంటారు. కానీ ఈ స్థాయికి రావాలి, ఒక పరిశ్రమని ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఒప్పించాలి, ఇంకో దేశానికో ఇంకో రాష్ట్రానికో పోకుండా మన రాష్ట్రానికి తీసుకొని రావాలి అంటే దాని వెనకాల చాలా తతంగా ఉంటుంది. ముందుగా మా శక్తి గారు, తర్వాత నరసింహారెడ్డి గారు, మా జయేష్ రంజన్ గారు, ఇంకా వాళ్ళ టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఒకటికి పలు దఫాలు వారితో చర్చించి ఇతర రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు అన్నీ కూడా వివరించి ఇక్కడ సానుకూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయని ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పించి ఆ తర్వాత వారికి ఒప్పందంలో భాగంగా రాయితీలు ఇతరత్ర ఇచ్చి అల్టిమేట్గా ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తామంటే రెండు కారణాలు. ఒకటి, మన పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి, మన దగ్గర ఉండే టాలెంట్కి అవకాశాలు రావాలి. రెండవది, ఇక్కడ పరిశ్రమ వస్తే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చుట్టుపక్కల భూముల ధరలు పెరుగుతాయి, రిజిస్ట్రేషన్లు అవుతాయి, ట్యాక్సెస్ కడతారు, అదనంగా ప్రభుత్వం యొక్క రెవెన్యూ కూడా పెరుగుతుంది. తద్వారా ప్రభుత్వం చేయాలనుకునే అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ అల్టిమేట్గా ముందుకు సాగాలి అంటే ప్రైవేట్ రంగంలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడం మినహా వేరే మార్గం లేదు. వాస్తవం ఏంటంటే ఈరోజు అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కానీ, భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కానీ, లేదా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కానీ, ఎవరికైనా ఈరోజు అన్నిటికంటే అతిపెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే ఉపాధి కల్పన, ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల సృష్టి, ఉపాధి కల్పన, సంపద సృష్టించడం. ఆ సృష్టించిన సంపదని ఏ రకంగా తిరిగి మళ్ళీ ప్రజల కోసం ఖర్చు పెడతామనే విషయంలో ఒక స్పష్టతతో ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా పనిచేయడం. ఈరోజు నిజంగా కూడా నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను. ఇవాళ భారత్ సీరం వ్యాక్సిన్స్ సంబంధించిన సంజీవ్ గారు, అదేవిధంగా అడ్వెంట్ నుంచి విచ్చేసిన వైదీష్ గారు, వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అదే చెప్తా ఉన్నాను. ఇవాళ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని అనుకూలతలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో ఎక్కడా లేనంత వేగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈరోజు ముఖ్యంగా పారిశ్రామికీకరణలో, ఉపాధి కల్పనలో పనిచేస్తుంది అనడం నిర్వివాదం. ఎందుకంటే ఈరోజు మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పడదు, మీకు తెలుసు. తెల్లారు లేస్తే మేము వాళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఉంటాం, విమర్శలు చేసుకుంటూ ఉంటాం. నరేంద్ర మోడీ గారు, కేసీఆర్ గారు, తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ, బీఆర్ఎస్ రోజు ఎక్కడో దగ్గర ఏదో పంచాయతీ నడుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా ఒప్పుకోక తప్పని పరిస్థితి. मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर मुस्लिम नौजवानों की तंजीम फोकस और तंजीम इरशादुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम 14वां ब्लड डोनेशन कैंप हज हाउस नामपल्ली और ईदगाह बालम राही पैराडाइज सिकंदराबाद में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मुनक़िद होंगे। डॉक्टर हाफिज़ मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी ने बताया कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे 28 सितंबर को है, ताहम इसी दिन गणेश जुलूस के पेश नज़र मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का 24 सितंबर को अहतमाम किया जा रहा है ताकि आवाम को आमद रफ्त में किसी किस्म की जहमत ना हो। तवक्को है कि 18 साल से 60 साल की उम्र तक के ऐसे 2000 अफराद खून का अतिया देंगे। फोकस और तंजीम इरशादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुज़िश्ता 13 बरस से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों अफराद, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की होती है, खून का अतिया देते हैं। ये खून थैलेसीमिया सोसाइटी को सरबराह किया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भी मौजूद थे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को, तमाम बाशिंदगान हिंदुस्तान को और अमूमी तौर पर तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल और ख़ास तौर पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा होने के नाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की निस्बत होने के नाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर
हमें खुशी का इजहार करना ये हमारा ईमानी और अखलाकी फरीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। कोई नातें पढ़कर, कोई जलसे कर कर, कोई जुलूस निकाल कर, और कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। हमें ये चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी इस अंदाज से मनाए कि उसमें हुजूर की तालीमात रोशन हो, हुजूर की तालीमात लोगों के सामने जाएं। खास तौर पर हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ यानी तबकात और मुख्तलिफ मजाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इस मौके को हुजूर की तालीमात लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो इंसानियत की नजात दहिंदा थे, और आपकी तालीमात जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई, उसमें हुक्म है कि कोई शख्स किसी एक इंसान की जान बचाता है तो गोया वो पूरी इंसानियत की जान बचाता है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स अपने जिस्म के अंदर खून न बनने की वजह से जिंदगी, मौत और जीस्त की कशमकश में रहते हैं, तो इस मौके पर हम चाहते हैं कि हुजूर की विलादत की खुशी अपने खून का अतिया उन थैलेसीमिया के पेशेंट्स को देकर मनाए, ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और रोशन रहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिक और इंतहाई मुनफरिद अंदाज आज से 14 साल पहले शुरू हुआ, और ये 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में एक हंगामा बरपा है। ब्लड डोनेशन कैंप्स मुस्लिम कम्युनिटी जितने करती है कोई और जगह नहीं, इतने कैंप्स होते हैं, और ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप को। मीलाद के नाम से शुरू हुआ और बरकतें शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप आसिफिया सेंट्रल लाइब्रेरी में हुआ करता था। आप हजरात को इत्तला देते हैं कि वो हम अपनी जगह को चेंज किए हैं, और अब इस वक्त बड़े वसी और इस पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली में हज हाउस का जो बिल्डिंग है वहां पर हमने अपने ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि रियासत तेलंगाना में आज़ादाना और आसान इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों के लिए तरबियती प्रोग्राम और ईवीएम के पहले मरहले का मुआयना मुकम्मल हो चुका है। सीईओ ने ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के राय दहिंदों और माजूर अफराद को घर बैठे अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा, और इस तरीक़ेकार को कोविड वबा के दौरान पहले ही कामयाबी से आजमाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आइंदा माह के पहले हफ्ते में हतमी फ़हरिस्त राय दहिंदगान जारी होने के बावजूद वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। उन्होंने इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं की तफसीलात बताई, जिनमें मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा ख़त्ई प्लान पर सख्ती से अमल करना शामिल है। आज जुमेरात के दिन सुबह से मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों के सेल फ़ोन पर इमरजेंसी अलर्ट पैगामात भेज रही है, जिसकी वजह से सेल फ़ोन सारिफिन उलझन का शिकार है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इन्हें इस तरह का अलार्म वाला मैसेज क्यों मौसूल हो रहा है। बाद सारिफिन को 2-3 मरतबा इस तरह के मैसेज मौसूल हुए हैं। ताहम बताया जाता है कि ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भेजा जा रहा है। जब मुल्क में किसी भी किस्म की आफत आती है तो लोगों को ख़बरदार करने के लिए मैसेज भेजा जाएगा, और आज तजुर्बे के लिए मुल्क भर के सेल फ़ोन सारिफिन को ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा गया है। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR के सेल फ़ोन पर भी ये मैसेज उस वक्त मौसूल हुआ जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इनके सेल फ़ोन पर इमरजेंसी अलर्ट का सायरन बजने लगा। वज़ीर मौसूफ अचानक इससे चौंक गए और उन्होंने मुंतज़िमीन से पूछा कि ये क्या है, फायर अलार्म है क्या? जिस पर मुंतज़िमीन ने मरकज़ी हुकूमत के इमरजेंसी अलर्ट मैसेज के बारे में बताया तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली और मीटिंग जारी रखी। Quote from science, but I can quote from all the information that is there a fire alarm or should we vacate? What do you mean? No, it's a fire alarm. I think we should go. Speaker hai na? Okay. This is a closed auditorium, so good luck, guys. All I'm saying is, see, I'm worried because we need to also figure out a strategy.
चलती बाइक के टायर में उड़नी फंस जाने के नतीजे में गिरने से एक खातून की मौत हो गई। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 25 साला पूजिता नामी खातून और इसका शौहर जगन नागोरम गांव में रहा करते हैं। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। दोनों बच्चे बुखार से मुतासिर थे। इस पर यह जोड़ा 18 सितंबर को अपने बच्चों को लेकर जमीकुंटा के अस्पताल जा रहा था कि करीब पहुंचते ही पीछे बैठी पूजिता की उड़नी मोटरसाइकिल के टायर में फंस गई और वह सड़क पर गिर गई, जिसकी वजह से इसके सर पर शदीद चोट आई और इसको फौरी तौर पर जमीकुंटा के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया और वहां से इसे बेहतर इलाज के लिए हनमकुंडा के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मंजुला ने पुलिस से शिकायत की है कि दामाद जगन राव की तेज़ रफ्तार बाइक चलाने की वजह से इसकी बेटी की मौत हो गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रियासत आंध्र प्रदेश में गणेश पंडाल में डांस करने के दौरान हार्ट अटैक से एक नौजवान की मौत हो गई। वहां मौजूद अफराद जो डांस का वीडियो बना रहे थे, इसमें देखा जा सकता है कि नौजवान नाचते नाचते अचानक गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले सत्य में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साला प्रसाद ज़िले के धर्मारम में गणेश मूर्ति के पंडाल में कल रात म्यूज़िक पर रक़्स कर रहा था। ताहम अचानक वो रक़्स के दौरान गिर पड़ा, जिसके बाद इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट अटैक मौत की वजह है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। हालिया दिनों में वर्जिश करने के दौरान और हार्ट अटैक के बायस होने वाली अमवात के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 24 और 25 सितंबर यानी 8 और 9 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल लिल आलमीन व कुल हिंद नातिया मुशायरा मुनक़्क़िद होगा, जिसकी सदर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। इतवार को जलसा रहमतुल लिल आलमीन से बैरूनी मेहमान मुखर्रिर मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही उत्तर प्रदेश खिताब करेंगे। मुक़ामी मुखर्रिरीन मजलिस के क़ायद मुखर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया, मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद क़ादरी नायब शेख तफसीर जामिया निज़ामिया और शाही मस्जिद बाग़ आमा के ख़तीब के अलावा निगरानी जलसे का ख़ुसूसी खिताब होगा। दूसरे दिन यानी पीर 25 सितंबर 9 रबीउल अव्वल को कुल हिंद नातिया मुशायरा ज़ेर निगरानी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुनक़्क़िद होगा। कुल हिंद नातिया मुशायरे में जुमला 21 शोरा इकराम अपना कलाम सुनाएंगे। शहर हैदराबाद के इलाके मियाँपुर में गणेश की मूर्ति के लड्डू की चोरी कर ली गई। ओमकार सेवा समिति नामी मुकामी नौजवानों के ग्रुप ने मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद में कौमी शाहरा के करीब एक गणेश मंडप कायम किया। ताहम कल शब 22 से 25 साल की उम्र के एक नौजवान ने गणेश मंडप में दाखिल होकर 11 किलो वजनी लड्डू की चोरी कर ली। इस वारदात के वक्त तमाम सो रहे थे। चोरी की यह वारदात वहाँ लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस मंडप के ज़िम्मेदारों ने फौरी तौर पर इस बात की पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। पुराने शहर हैदराबाद के दूधबौली इलाके में वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश को मजलिस के एक्टिव मेंबर राजेश्वर राव ने नाकाम बना दिया। इस सिलसिले में उन्होंने मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम को इत्तला दी। मोहम्मद सलीम ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया और इसकी इत्तला सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और बहादुरपुरा के रुकन असम्बली नवाब मौज़म खान को दी। बादशाह इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूधबौली डिवीज़न में इमली के झाड़ के पास एक ख़दीम आशिर खान नाले मुबारक है, जिसके तहत और एक 70 गज़ की जो है ओपन लैंड है। यहाँ पर कुछ लोग आकर वक्फ बोर्ड का अलॉटमेंट लेटर है अगर कब्ज़ा कर रहे थे। जैसे ही महल्ले वालों ने इत्तला दी, मैं आली जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब MLA हल्के आज़ा को मैंने इन्फॉर्म किया। MLA साहब बोले जाकर देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ आकर हमने पुलिस को मुत्तला कर काम रुकवा दिया गया है। इसकी वक्फ बोर्ड का अलॉटमेंट लेटर ये लोग बता रहे हैं, इसकी जांच की जाएगी। हम भी वक्फ बोर्ड को रुजू होंगे किस बेसिस पे लोग अलॉट करें, क्या उसका जवाज़ है अलॉट करने का, इनको क्या इख्तियार है, हम वो देख कर जो है अगला क़दम लिया जाएगा। जब तक इनको काम रुकाने के लिए पुलिस इंस्ट्रक्शन दे चुकी है, यहाँ किसी किस्म का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। महल्ले वाले सारे जो है हम भी सुबह जाकर फिर सदर मोहतरम से मुलाकात करेंगे ये लोग
जो भी हिदायत होगी उस पर अमल किया जाएगा। शुक्रिया। काम कर रहे बोल के बोल दीजिए आप। हाँ? काम करने वाले भी हम बोले तो बोल जाना तो वक्त हाँ वक्त प्लान है। वक्त प्लान के ऊपर ये लोग किस बेस के ऊपर यहाँ पर आए हैं? हाँ वही तो बोल रहे हैं, एक अलॉटमेंट लेटर बता रहे हैं वक्फ बोर्ड का उन्होंने, तो वो गैर वाजबी है वो, क्योंकि उसका उनको जवाज़ नहीं है देने का वक्फ बोर्ड वालों को। इस तरह से अगर कोई काबिज़ है, कोई सबसे पहले से ख़दीम है तो उनको अलाट कर सकते हैं, क्या महल्ले के ख़दीम लोग आए उनको अलाट कर सकते हैं, वो भी उसी सूरत में उसका किराया जो है आशिर खाने को जाएगा। वो क्या है हम जो है तफसील मालूम कर सदर मोहतरम को इसकी इत्तला दी जाएगी। शुक्रिया। भैंसा में गणेश त्यौहार के पुरअमन अख्तिताम के लिए भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS की निगरानी में उलमा इकराम का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी, मौलाना शाहिद गुफरान क़ासमी, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, रुकन बल्दिया फैज़ुल्लाह खान टाउन सदर मजलिस, मोहम्मद मुजीब अहमद साबिक़ा नायब सदर नशीन बल्दिया, अब्दुल वासिर रसूल साबिक़ा BRS टाउन यूथ सदर, MA लतीफ़ कांग्रेस अक़लियती जनरल सेक्रेटरी के अलावा ह्यूमन राइट्स के ज़िम्मेदारान जिनमें सैयद बासित, सैयद मखदूम अली, सैयद नदीम व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मज़कूरा उलमा इकराम और रुकन बल्दिया ने शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस को मुतहरिक रहने और मुसलमानों की जानिब से हर मुमकिन ताउन का तयक़्क़ुन दिया। आखिर में एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS ने पुलिस इंतजामात पर तफसीली रोशनी डाली। इस इजलास में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर L श्रीनिवास और सब इंस्पेक्टरान मोहम्मद गौस, पूर्णेश्वर व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हिंदुस्तान ने कनाडा के शहरियों के लिए वीज़ा खिदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया मुअत्तल। उधर कनाडा ने भी हिंदुस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा खिदमात को कर दिया मुअत्तल। हैदराबाद दुनिया के टीकों का दारुल हुकूमत बन गया। हैदराबाद में एक तकरीब से वज़ीर KTR का खिताब। मुल्क भर के सेलफोन सारिफिन को इमरजेंसी अलर्ट मैसेज। KTR भी मैसेज से चौंक गए। मोटरसाइकिल के टायर में फंस गई ओढ़नी, खातून गिरकर हलाक। तेलंगाना के करीमनगर ज़िले में अफसोसनाक वाक़या। हैदराबाद में गणेश मूर्ति के लड्डू की चोरी, वीडियो वायरल। तेलंगाना में इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।